Hello everyone. Today we'll start a very important topic of chemistry of class 9th, and you can say the topic belongs to chapter 3 atoms and molecules. It's a very important topic. ये आपका 11th क्लास में भी यूज होता है, 11th केमिस्ट्री में भी आपका बहुत ज़्यादा यूज होता है. So our today's topic is mole concept. Now we know that atoms and molecules are very small in size. We know that we calculate the mass of an atom in U because these are very small in size, and we can't even see the atoms with the naked eyes because they are very small. तो अगर कोई चीज़ इतनी स्मॉल है तो उसके लिए हम मोस्टली एक एटम या एक मॉलिक्यूल की बात नहीं करते. When we are doing the reaction, we are taking some amount of carbon or some amount of oxygen. So we need the collection of particles, and we need a term to show that collection of particles. If you go to the market and you say that I want 1 dozen oranges, so what you get? 12 oranges. Similarly, if you say that I want 1 dozen notebooks of that particular type, so you get 12 notebooks. If you say I want 1 dozen pens, you get 12 pens. So every time you say dozen, so dozen presents 12 things. कोई भी चीज हो, dozen हमेशा 12 को present करता है. Similarly, in chemistry, we need a term for showing the collection of particles because particles are very small in size. So that term is basically called as mole. As I told you that if you are doing a particular reaction, so you will not say that I am taking 1 atom of carbon or I am taking 20 atoms of oxygen. We are basically talking about huge number of particles. So for that huge number of particles, we need a particular term, and that term is mole. Now what does mole means? 1 mole of any substance will have 6.022 into 10 to the power 23 particles of that substance. अगर हम किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की बात करते हैं तो उसमें 6.022 into 10 to the power 23 particles of that substance present होंगे. Now why I have written particles here? Because substance could be atomic, so it would be atoms in that. Substance could be molecular, तो उसमें molecules होंगे, and अगर कोई ionic compound है तो उसमें ions होंगे. So particles is a general term for atoms, molecules or ions. If the substance is atomic, for example carbon, we can say that 1 mole of carbon which is atomic is having 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon. But if I am taking a molecular substance like water, so I will say that 1 mole of water will have 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water. So substance की जब हम बात करें तो वो डिपेंड करता है कौन सा सब्सटेंस है. अगर एटॉमिक है तो यहाँ पर एटम्स आ जाएगा, अगर मॉलिक्यूलर है तो यहाँ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और अगर कोई आयनिक सब्सटेंस है तो यहाँ पर आयन्स आ जाएंगे. एंड दिस नंबर इज अ वेरी ह्यूज नंबर. अगर मैं इसको इस तरह से प्रेजेंट करूँ तो इट विल हैव 22 zeros. कैन यू इमेजिन दिस नंबर? दिस इज अ वेरी ह्यूज number. The reason being because particles are very small in size. So even 1 mole of that substance constitutes so many particles of that particular substance. And this number 6.022 into 10 to the power 23, this is called Avogadro's number. Na से denote करते हैं, and this number is called as Avogadro's number. If the natural state of a substance is atomic, for example if I talk about 1 mole of carbon, तो कार्बन के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे कार्बन के एटम्स है ना. कार्बन इज एटॉमिक. कार्बन की नेचुरल फॉर्म जो है उसमें क्या होते हैं? कार्बन के बहुत सारे एटम्स. सो इफ आई से 1 मोल ऑफ कार्बन, तो इट विल हैव 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon. अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होंगे? इतने एटम्स. बट अगर मैं बात करती हूँ 1 मोल ऑफ वाटर,
अब वाटर की जो नेचुरल फॉर्म है वो क्या है, मॉलिक्यूलर। वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2O, 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 है ना। तो मतलब इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, मॉलिक्यूल है। हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। तो अब नाउ 1 मोल ऑफ वाटर विल हैव 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water। तो वी शुड नो कि अगर कोई सब्सटेंस एटॉमिक है जैसे कार्बन, तो उसके 1 मोल में इतने एटम्स होंगे। बट अगर कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूलर है तो उसके 1 मोल में इतने क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इफ आई से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मॉलिक्यूलर है, CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इट विल हैव 6.022 into 10 to the power 23 molecules of carbon dioxide। But if I say 1 mole of sodium, सोडियम क्या है, एटॉमिक, तो इसमें क्या होंगे 6.022 into 10 to the power 23 atoms of sodium। Now there is a difference। If I write 1 mole of ऑक्सीजन गैस, नेचर में ऑक्सीजन गैस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, O2, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। देन इट विल हैव 6.022 into 10 to the power 23 molecules of oxygen। But if I say 1 mole of oxygen atoms, now I have mentioned कि ऑक्सीजन गैस नहीं, ऑक्सीजन एटम्स मैंने मेंशन कर दिया, so it will have 6.022 into 10 to the power 23 atoms of oxygen। Can you imagine this number? This number is very very large। 60220000 20 zeros आगे आ जाएंगे, तो ये बहुत लार्ज नंबर होता है बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। तो मतलब हम जब भी 1 मोल की बात कर रहे हैं तो हमें या तो उसकी नेचुरल फॉर्म पता होनी चाहिए या हमें क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि हम ऑक्सीजन एटम्स की बात कर रहे हैं या ऑक्सीजन गैस। जैसे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो ये मॉलिक्यूलर है, तो इट विल हैव 6.022 into 10 to the power 23 molecules of nitrogen। But if I specifically mention 1 mole of nitrogen atoms, then it will have 6.022 into 10 to the power 23 atoms of nitrogen। So if the substance is atomic, 1 mole will have this many atoms, and if the substance is molecular, 1 mole of that substance will have this many molecules। It depends upon the natural form of that substance। We have already done that there is a term atomic mass and a term molecular mass। Now we will relate these terms with the mole, but first of all, if I say atomic mass of carbon C is 12U, what does it mean? It means mass of 1 atom of carbon is equals to 12U। Similarly, if I say atomic mass of helium is equals to 4U, it means mass of 1 atom of helium is equals to 4U। बट ये तो एक एक एटम है ना, और वो भी U में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। बट जब हम कोई रिएक्शन करते हैं या हमारी नॉर्मली मास को मेजर करने की जो यूनिट होती है वो या तो ग्राम्स होती है या किलोग्राम्स होती है। अगर हम छोटी यूनिट की भी बात करें तो हम ग्राम्स में करेंगे, बट ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं U में।
यूनिफाइड मास में, बट जब हम रिएक्शंस करते हैं तो हमें कोई भी सब्सटेंस चाहिए, वो किस में चाहिए होगा, ग्राम्स में. सो वी नीड अ रिलेशन बिटवीन grams and U. For that we have a term called gram atomic mass. उसके लिए हमारे पास क्या टर्म आ गई, gram atomic mass. Gram atomic mass means mass of 1 mole of atom in grams. क्योंकि देखो एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, हम एक एटम का मास तो ग्राम्स में निकाल नहीं सकते, उसके लिए तो हमें बहुत छोटी यूनिट चाहिए थी जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं यू. बट यस, हम ग्राम्स को यूज कर सकते हैं फॉर कलेक्शन ऑफ एटम्स. तो उसके लिए हमने एक टर्म बनाई, ग्राम एटॉमिक मास. ग्राम एटॉमिक मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम्स. जैसे नॉर्मल एटॉमिक मास होता है एक एटम का मास और वो हम यू में कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह से ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम्स. जैसे इफ आई से ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो वो 12 यू की जगह क्या हो जाएगा, 12 ग्राम. बट इसका मतलब ये नहीं है कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास एक ही बात है, वैल्यू सेम होगी 12U 12 ग्राम, लेकिन ये एक एटम का मास है. इट मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल्स टू 12 ग्राम. If I say 12U, it means mass of 1 atom. But if I say 12 gram, it means mass of 1 mole of carbon atoms. That means mass of 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon is equals to 12 gram. Similarly, if I say gram atomic mass of helium, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना था, 4U. ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा, 4 ग्राम. बट इसका मतलब क्या है, इट मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम एटम्स इज इक्वल्स टू 4 ग्राम. इट मीन्स मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 atoms of helium is equals to 4 ग्राम. तो मतलब ग्राम एटॉमिक मास किसी भी एटम का मास होता है ग्राम्स में, लेकिन वो उस एटम के 1 मोल एटम्स का मास होता है, यानी कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स का मास होता है. और न्यूमेरिकली वैल्यू उसकी ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास की मैग्नीट्यूड वैल्यू जो है वो इक्वल होती है, लेकिन एटॉमिक मास U में होता है और ग्राम एटॉमिक मास G में होता है. सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर मॉलिक्यूलर मास and gram molecular mass. You know molecular mass क्या होता है, किसी भी एक मॉलिक्यूल का मास, वो हम किस में कैलकुलेट करते हैं, U में कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर दैट इज H2O, तो हमने ये बहुत बारी कैलकुलेट करा हुआ है. 2 हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन का मास 16, 2 + 16 18U. So what do we say? We say that mass of 1 molecule of water is equals to 18U. कि एक मॉलिक्यूल वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, 18U. Now if I say gram molecular mass
ऑफ वाटर। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। क्या करते हैं, वैल्यू सेम, यू की जगह क्या आ जाएगा? ग्राम। बट क्या ये एक ही बात है? ये एक ही बात नहीं है। इट मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 18 ग्राम। 1 मोल ऑफ वाटर मीन्स mass of 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water is equals to 18 ग्राम। एंड माइंड इट, एक मोल का मास, इसको शॉर्ट में हम मोलर मास भी कह देते हैं। तो जब भी कोई आपसे पूछे मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास मतलब आपको एक मोल का मास बताना है, और एक मोल का मास किस में होता है? ग्राम्स में होता है। सो मोलर मास ऑफ वाटर विल बी 18 ग्राम। इट्स नॉट दैट कि ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, इवन एटम्स के लिए। इफ आई से मोलर मास ऑफ कार्बन, तो मोलर मास ऑफ कार्बन विल बी इट्स ग्राम एटॉमिक मास। वो किसके इक्वल होगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, यानी कि 12 ग्राम। तो मतलब ग्राम एटॉमिक मास नहीं बोला, शॉर्ट में हमने क्या बोल दिया? मोलर मास। सिमिलरली इफ वी से मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन एक है, कार्बन का मास 12, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन का मास 16, 12 प्लस 32, it comes out to be 44U. And what does it means? It means mass of 1 molecule of carbon dioxide is equals to 44U। कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास कितना है? 44U. But if I say gram molecular mass of carbon dioxide, it will be 44 grams. U की जगह क्या आ जाएगा? grams. And it means mass of 1 mole of carbon dioxide is equals to 44 gram. यानी कि mass of 6.022 into 10 to the power 23 molecules का मास कितना हो गया? 44 ग्राम। और उसको और शॉर्ट में हम क्या कह देते हैं? मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 44 grams. Now we have understood that 1 mole of any substance will have 6.022 into 10 to the power 23 particles of that substance. And one more thing that we now know is its mass will be equal to the molar mass of that substance. What is molar mass? अगर वो सब्सटेंस एटॉमिक है तो इट्स ग्राम एटॉमिक मास, एंड अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूलर है तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में इतने पार्टिकल्स होंगे एंड उसका मास कितना होगा? जितना उस सब्सटेंस का मोलर मास है, यानी एटॉमिक मास इन ग्राम्स और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। तो मतलब हमारे को मोल की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल गई, एंड हमें मोल की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ मास भी पता चल गई कि एक मोल सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होंगे एंड उसका मास कितना होगा। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. If I say 1 mole of helium, now helium is atomic, so it will have 6.022 into 10 to the power 23 atoms of helium. तो मतलब एक मोल हीलियम में इतने atoms of helium present होंगे एंड उसका मास किसके इक्वल होगा? जो कि हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास होता है. यू नो दैट हीलियम हैज मास, atomic mass 4U. When we will convert it into gram atomic mass, it will become 4 grams. So 1 mole of helium will have
mass equal to the 4 gram. Similarly, 1 mole of carbon will have 6.022 into 10 to the power 23 atoms एंड उसका मास किसके इक्वल होगा, जो कि हीलियम का मोलर मास है, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास है. तो मतलब 1 मोल हीलियम में इतने एटम्स एंड इतने एटम्स का मास इतना. हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि 1 मोल 1 मोल कार्बन में इतने एटम्स का मास 12 gram. Similarly, 1 mole of oxygen atoms will have 6. Now, see, I have mentioned oxygen atom. वैसे ऑक्सीजन गैस जो उसकी नेचुरल फॉर्म है वो O2 है, एलिमेंटल फॉर्म. बट वी हैव स्पेसिफाइड हियर that we are talking about 1 mole of oxygen atoms and not the oxygen molecules, not the oxygen gas. So, 1 mole of oxygen atoms will have 6.022 into 10 to the power 23 atoms of oxygen. Now its mass will be equal to, because atoms हैं तो किसके इक्वल होगा, ग्राम atomic mass. We know that atomic mass of oxygen is 16 U. So its gram atomic mass becomes 16 gram. Similarly, if I talk about 1 mole of nitrogen atoms, I have specified atoms. So it will have 6.022 into 10 to the power 23 atoms of nitrogen and its mass will be equal to gram atomic mass of nitrogen, which is 14 grams. क्योंकि एटॉमिक मास होता है 14 U, तो ग्राम एटॉमिक मास बन गया 14 grams. Now we come to some molecules as well. If I say 1 mole of nitrogen gas, नाइट्रोजन गैस की नेचुरल फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म क्या है, मॉलिक्यूलर. सो 1 mole of nitrogen gas will have this many molecules, 6.022 into 10 to the power 23 molecules, and now its mass will not be equal to 14 gram because it is N2. तो इसका मास कितना हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. N का मास 14, N2 है तो 14 into 2 it comes out to be 28 grams. Similarly, if I say 1 mole of oxygen gas is molecular, so it will have 6.022 into 10 to the power 23 molecules of oxygen and its mass will be equal to gram molecular mass. Oxygen का molecular mass होता है 16 atomic mass, तो 16 into 2 32 grams. If I say 1 mole of carbon dioxide gas, it will have this many molecules and its mass will be equal to gram molecular mass of carbon dioxide, जो हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, 44 grams. Similarly, if I say 1 mole of water, it will have 6.022 into 10 to the power 23 molecules, क्योंकि molecular है तो इतने molecules. एंड उसका मास किसके इक्वल होगा, मोलर मास बोलो या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलो, दैट इज 18 grams.